بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. محترم ناظرین، کل جموں اینڈ کشمیر حج کمیٹی کی طرف سے ایک پریس کانفرنس رکھی گئی تھی جس میں 2023 کے حج پالیسی کا اعلان کیا گیا، اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی آیا کہ 45 سال سے زائد عمر والی عورتوں پر مشتمل گروپ کے اندر شامل ہو کر بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے مسلمان انتشار کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے کہ آیا عورت بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہے؟ کیا عورت حج کے لیے فارم بھرے یا نہیں؟ اس حوالے سے اسلامی اور فقہی نقطہ نظر کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے حج کے فریضے ہونے کے حوالے سے، حج کے فرض ہونے کے حوالے سے یہ بات سن لیجئے کہ حج کس پر فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کس چیز سے فرض ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زاد راہ اور سواری سے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع الیہ سبیلا کا مطلب زاد راہ یعنی توشہ اور سواری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے پاس بنیادی ضرورت اور نیز اگر اس کے ذمے کسی انسان کی کفالت لازم ہے تو زیر کفالت افراد کے خرچے کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ فریض حج کا جو سفر ہے اس کے اخراجات، جس میں کھانا پینا، رہائش، آنا جانا، یہ سب چیزیں آتی ہیں، اگر وہ یہ ساری انتظام اس رقم سے کر سکتا ہو تو ایسے انسان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ عورت کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ حج پہ جا سکتی ہیں اور سارے اخراجات اس کے پورے ہو سکتے ہیں تو حج عورت کے اوپر بھی فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ مرد تنہا حج پہ جا سکتا ہے، عورت تنہا حج پہ نہیں جا سکتی، بلکہ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو کوئی محرم اپنے خرچے پہ حج پہ جا رہا ہو تو یہ عورت بھی حج کرے گی، یا پھر اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ محرم کا انتظام کر سکے، اس کو اپنے ساتھ لے جا سکے، تو یہ اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب عورت جو ہے شرعی جو مدت سفر ہے یعنی 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت کی دوری پر رہتی ہو، جس کو اگر ہم آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو 48 میل یا 77 کلومیٹر کی دوری پر اگر عورت رہتی ہے تو بغیر محرم وہ حج پہ نہیں جا سکتی، چاہے عورت جو ہے جوان ہو، ضعیف العمر ہو، تنہا جا رہی ہو یا گروپ کے ساتھ جا رہی ہو۔ تمام علماء احناف، متقدمین و متاخرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا ہرگز قطعاً جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ چیز بالکل بھی حلال نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں کا سفر بغیر محرم کی کرے۔ اس روایت کے اندر اگر غور کرے کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کی تاکید کے بعد ممانعت فرمائی کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر پر روانہ ہو جائے۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، کہ مرد ہرگز عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو، ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، اور عورت بھی ہرگز سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ صحابہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو فقام رجل، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امراتی خرجت حاجتا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی تو حج پہ جا رہی ہے، وَإِنِّي اِكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، اور میرا نام فلاں
गज़वे के अंदर लिखा जा चुका है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़न्तलिक़ फ़हुज्ज मअ इम्रअतिक, आप जाओ और अपनी बीवी के साथ हज पे रवाना हो जाओ। इस रिवायत के अंदर अगर हम गौर करें, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका नाम बाबरकत सफ़र के अंदर लिखा जा चुका था, यानी इस जहाद के अंदर, उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज जहाद पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी जो है बीवी के साथ हज पे रवाना हो जाओ। हालांकि उनकी बीवी अकेले तन्हा हज पे रवाना नहीं हुई थी, बल्कि अपने कबीले के काफिले के साथ, जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी थीं, जा रही थी। हालांकि वो ऐसा ज़माना था, खैरुल कुरून का ज़माना था, जिसमें चारों तरफ अमन था, फित्नो फसाद का इम्कान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद क्या फरमाया कि औरत यानी अपनी बीवी को तन्हा जो है मत छोड़ो, बल्कि आप उसके साथ रवाना हो जाओ। जैसे ये बात साबित होती है कि एक औरत अकेली और ग्रुप के साथ हज पे महरम के बगैर नहीं जा सकती। अब यहाँ पर इस बात समझने की ज़रूरत है कि शरीयत ने औरत को तन्हा सफ़र करने से मना क्यों किया। वजह उसकी ये है कि तन्हा औरत को सफ़र करने से इसलिए मना किया गया ताकि एक औरत की इज्जत और असमत की हिफाजत हो सके, उस पर तोहमत ना लगे और इसके ऊपर कोई दाग ना लगे, जो कि औरत की कीमती चीज़ है। तो शरीयत ने इस बात का ख्याल रखा है, लिहाजा औरतों को चाहे कि इस्लाम के हुक्म की कदर करे और शरीयत मुतहरा को अपना मुहसिन समझे। और ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि एक औरत अगर औरतों के ग्रुप के साथ जा रही है, तो जिस जगह औरतों का इज्तिमा हो, महरम साथ ना हो या शौहर साथ ना हो, तो इन औरतों की मिसाल उस कसाई के तख्ते पर रखे हुए गोश्त की तरह है, जिस पर जो है हर तरफ से खतरा मंडलाता नजर आता है। वो औरतें खुद अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए, मर्द हजरात अपने महारिम की क्या होती है, मोहताज होती है, वो कैसे इस औरत की हिफाजत कर सकती है, जबकि आज का ज़माना पुरफितन फसाद से भरा हुआ है। औरत की इज्जत कहीं पर महफूज नहीं है, एक औरत को तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता। और सफ़र, जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सफ़रु क़ित्अतुम मिनल अज़ाब, अज़ाब सफ़र जो है अज़ाब का एक टुकड़ा है, जिसमें इंसान को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इंसान बीमार हो गया तो एक औरत पैदाइशी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर होती है। ऐसा कम देखने को मिलता है कि औरतें अपने काम को छोड़कर दूसरे औरत की मदद करें, इसलिए बवजह मजबूरी फिर मर्दों को इस औरत की मदद करनी पड़ती है। तो सवारी से उतारना, चढ़ाना, हस्पताल ले जाना, सहारा देना, फिर जो उसमें हाथ को भी पकड़ना लाजिम आता है। तो इस एतबार से जानिबैन या दोनों में से किसी एक का फितने से महफूज रहना बड़ा मुश्किल है। और ये कोई मामूली सफ़र नहीं है, मक्कातुल मुकर्रमा जाना है, आबो हवा की तब्दीली की वजह से आमतौर पर इंसान बीमार हो जाता है। इसी तरह से किसी जगह तवील क़ियाम इंसान को करना पड़ता है और सख्त तरीन जो है कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा कदम कदम पर औरत को जो है अपने महरम और शौहर की क्या है ज़रूरत महसूस होती है, उसकी मदद की ज़रूरत उसको महसूस करती है। लिहाजा एक औरत तन्हा हरगिज़ भी सफ़र हज पर नहीं जा सकती है। फ़िलहाल उसके ऊपर हज की अदायगी उस पर फ़र्ज नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये औरत क्या करे। इस औरत के लिए हुक्म ये है कि वो इंतज़ार करेगी, अगर कोई महरम जा रहा है तो उसके साथ जाए, या इसके पास इतनी रकम आ जाती है कि वो अपने साथ महरम ले जाने का जो है इंतज़ाम कर सकती है तो ये करे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पूरी ज़िंदगी महरम का जो है इंतज़ाम ना हो सका, तो शरीयत ये कहती है कि इस औरत को मरने से पहले कि वो वसीयत कर जाए कि मेरी तरफ से हज बदल करवाया जाए। फिर अगर वो माल छोड़ जाती है तो जो वारिसीन हैं उनके ऊपर हक बनता है कि वो उसकी वसीयत को पूरा करे और ये औरत गुनहगार नहीं होगी। अब इंसान हज पे जाता है हज का फरीज़ा अदा करने के लिए और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, सवाब हासिल करने के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान इबादत करता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी लाजिम आती हो, तो ऐसी इबादत से सवाब की नीयत रखना अबस और नासमझी है।
लिहाजा कोई भी औरत जिसके पास महरम जो है जाने के लिए साथ नहीं है वो फार्म हरगिज़ ना भरे, क़तअन इसकी इजाज़त नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी अर्ज़ करनी ज़रूरी है कि महरम से कौन से मर्द मुराद हैं। इसमें जो है कुछ लोग गलत फहमी का भी शिकार हैं। इसमें एक ज़ाब्ता ये याद रखना है, जिन मर्दों के साथ औरत का निकाह शरीयत ने हमेशा के लिए हराम करार दिया है, ऐसे मर्द हजरात इस औरत के लिए महरम बन सकते हैं। और जिन मर्द हजरात का निकाह हमेशा के लिए हराम नहीं है बल्कि वक्ती और आर्जी तौर पर उसके लिए हराम है और आगे जाकर जायज़ हो सकता है, जैसे कि एक औरत अपने बहनोई के साथ हज पे नहीं जा सकती, अगरचे फ़िलहाल बहनोई के साथ इसका निकाह इम्कान है कि अगर किसी एतबार से जो है इसकी बहन का निकाह ख़त्म हो गया और इद्दत गुजर गई तो ये जो शख्स है ये इसके साथ निकाह कर सकता है। लिहाजा जो बहनोई हैं ये साली के लिए क्या हुआ, गैर महरम हुआ, ये महरम नहीं है। इसलिए ऐसे मर्द के साथ जो है हज पे जाना औरत के लिए जायज़ नहीं है, बल्कि ऐसे मर्द हजरात के साथ हज पे जाना जायज़ होगा जिनके साथ हमेशा के लिए शरीयत ने निकाह को क्या किया है, हराम किया है। लिहाजा ये मुख्तसर गुफ्तगू थी इस बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों के सामने इस्लामी और फ़िक़ही नुक्ता नज़र वाज़ेह हो चुका होगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।